Hall, reception area, and Shri Ajay Tamta, Minister of State, Road Transport and Highway also for the parent reception area. In addition to that, I am also very thankful to the Ministry of Defence for their continuous support in enhancing and upgrading the infrastructure of Sainik School Ghodakhal. And I am glad to inform each and every one of you present here that yesterday only I received a grant of 2.65 crore from Ministry of Defence for the multi-purpose indoor stadium at the place where we are sitting here. Last but not least, my gratitude to all the well-wishers of the school for their contribution in taking the school towards excellence. Now I kindly request Chief Minister, Chief Guest, Chief Minister of Uttarakhand to release the movie depicting the milestones in the Sainik School Ghodakhal journey. Jai Hind. In the Kumaon Hills, where the air is thin and the spirit is strong, stands an institution that has shaped generations of India's finest. A school where discipline is daily life, excellence is expectation, and service is destiny. This is Sainik School Ghodakhal, gateway to NDA, and the heart of the Ghodakhalian spirit. The concept of Sainik schools was born in the late 1950s under the visionary leadership of Defence Minister Shri V.K. Krishna Menon. His mission: to reduce social and regional imbalance in the officer cadre by offering quality education and military-oriented training to deserving boys from every corner of India. 1966. Nestled at 6,000 feet on the legendary Ghodakhal estate, the 15th Sainik School Ghodakhal, came to life. Established on the expansive 500-acre Ghodakhal estate, once owned by the Nawab of Rampur, the estate was destined to become a cradle for national leadership. When the school opened on 21st March 1966 with 60 cadets, they were not merely students, they were pioneers. In 1969, the first graduating batch sent 4 cadets to NDA, setting in motion a tradition that continues even today. The motto of the school followed ever since: Buddhiryasya balam tasya, wisdom is strength, a motto not just inscribed but lived. Over 60 years, Ghodakhal has produced more than 800 officers for NDA, NA and TES. Many have risen to the ranks of Major General, Lieutenant General and their equivalents. Its alumni have led states as Chief Secretaries, served India as global professionals. It is a matter of immense pride that Sainik School Ghodakhal will be completing 60 glorious years of service to nation on 21st March 2026. Sainik School Ghodakhal aims at developing a holistic personality and therefore strives to achieve excellence by developing all 3 areas of personality, that is physical, intellectual and physiosocial. We are engaged in providing leadership, training to young cadets to lead our defence forces. The school has won the Raksha Mantri Trophy 10 times for sending the highest number of cadets to the armed forces, an achievement unmatched in the Sainik School's fraternity. Cadets excel across fields: gold medals in English, Maths, Science Olympiads, Green Olympiad merit certificates and repeated victories in inter-school science and debate competitions. At Sainik School Ghodakhal, the purpose is etched into routine and life is steeped in military precision.
Discipline here is the foundation of destiny. The Cadets' Day is a relentless pursuit of excellence, molding both body and mind. Simultaneously, the intellect is sharpened through competency-based learning, demanding academic curriculum. This rigorous dual training ensures cadets are prepared for the battlefield and the boardroom alike. The school's spirit is defined by its achievements. Gorakhal cadets have earned accolades from across the nation, whether achieving high technical certification or excelling in the All India Sainik Schools national games. Their competitive energy is reflected in victories across hockey, athletics and basketball, cementing an enduring legacy of sporting dominance. With the girls consistently excelling and performing entirely at par with their male counterparts. Through compulsory NCC enlistment, cadets actively participate in training as well as various social awareness drive and national level events. Providing broad exposure is integral to the cadets' training, with all 522 students given opportunities for informative tours and excursions to various institutes. Sainik School Gorakhal provides specialized SSB coaching and orientation sessions to fully prepare cadets for the Services Selection Board. The curriculum focuses on developing the officer-like qualities essential for success in GTO tasks such as group discussions, progressive group tasks, PGT and lectures. The school has been a traditional trendsetter in achieving excellence in academics, sports and co-curricular activities. To ensure this, in recent years, we have modernized various facilities that a residential school can offer. Today, Gorakhal stands renewed, modern, progressive and aligned with the vision of Viksit Bharat. In the last 2 years alone, the campus has transformed. Financial support has surged. State grants increased from 5 crore rupees to 8 crore rupees. Synthetic track and artificial football ground sanctioned. Cadet exposure is unmatched. From ISRO's Yuvika Residential Program, Special Forces School Nahan, Air Force Academy Hyderabad, NDA Khadakwasla. Adventure remains integral. Whitewater rafting at Rishikesh, kayaking, canoeing, mountain biking, trekking to Chota Kailash, and even selection for Mount Everest expedition trials. The Diamond Jubilee year adds another layer of pride. Inter-school tournaments sponsored by ONGC, medical camps by Graphic Era Hospital, national science exhibitions, CCRT workshops, and cultural events celebrating 60 years of legacy. As we enter our Diamond Jubilee, we dream of a campus with new infrastructure and a learning ecosystem that nurtures confident leaders for the nation. Finally, I would like to thank everyone for their contribution over the years for the laurels earned by Sainik School Gorakhal. Our motto, Buddhir Yasya Balam Tasya, continues to guide every step we take. Jai Hind. For 60 years, Gorakhal has stood rigid like its mountains, firm, unwavering, resolute. Its legacy is measured not in buildings or trophies, but in the courage of its cadets, the integrity of its alumni, and the service they offer the nation. As Sainik School Gorakhal enters its Diamond Jubilee era, its mission remains unshaken: to forge leaders who carry discipline in their stride, wisdom in their decisions, and honor in their hearts. I'm sure each one present here has enjoyed the glorious journey of Sainik School Gorakhal. Now, the most awaited moment has come, the prize distribution ceremony to formally acknowledge and appreciate the dedicated efforts of our cadets throughout the year. I kindly request Honorable Chief Guest to do the honors. Please, sir. We begin with the Best Junior House
in academics, that is Love House. I invite Cadet Mohit Kumar and Cadet Manas Koranga to receive the trophy from sir. Now, Best Senior House in Academics, that is Kumar House. I invite Cadet Sunny Kumar and Cadet Aman Singh Rawat to receive the prestigious trophy from sir. The trophy for highest entry into NDA goes to Shivalik House. Cadet Anshik Gautam and Cadet Daksh Jaiswal are invited to receive the best NDA trophy from sir. Runners-up Cock House Trophy is claimed by Shivalik House. Cadet Anshik Gautam and Cadet Daksh Jaiswal are again invited to receive the trophy from sir. And the proud winner of Cock House Trophy is Kumar House. Cadet Sunny Kumar and Cadet Aman Singh Rawat to receive the coveted trophy from sir. Now it's time to honor the staff who contributed immensely for the smooth conduct of the event. The team includes Mr. G.S. Joshi, Senior Master, Dr. Shalini Mishra, Mr. D.P. Nayak, Mr. Rakesh Dhakar, Mr. Mudit Bist, Mrs. Rita Tiwari, Ms. Usha Bist, Mr. Puran Singh Bist, Ms. Manisha Kandwal, Ms. Neeta Joshi, Ms. Preeti Joshi, Ms. Megha Joshi, Mr. Pushkar Koshyari, Mr. S.S. Rana, Mr. Lokesh Giri, Ms. Pratibha Pant, and Mr. Madan Singh Mehra. Now I request Principal Sir to present a token of affection and gratitude to Honorable Chief Guest. Please, sir.
Now I invite Honorable Chief Guest to address the gathering. Please, sir. घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के आज हीरक जयंती समारोह के अवसर पर हमारे ग्रुप कैप्टन BS टेंगवाल जी यहाँ मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित भीमताल विधानसभा के माननीय विधायक श्री राम सिंह कैड़ा जी, नैनीताल विधानसभा की माननीय विधायक सरिता आर्य जी, BC गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान जी, कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय डॉक्टर DS रावत जी, महापौर नगर निगम पिथौरागढ़ श्री DR सिंह ग्रुप कमांडर NCC ग्रुप हेडक्वार्टर नैनीताल, ब्रिगेडियर मनोहर बंजाल जी, ब्रिगेडियर AK पांडे जी और भी हमारे सारे सभी सैन्य अधिकारीगण और आयुक्त कमिश्नर कुमाऊं श्री दीपक रावत जी, IG कुमाऊं विभिन्न अग्रवाल जी, डॉक्टर अनिल कपूर जी, श्री शंकर कोरंगा जी, रेणु अधिकारी जी एवं यहाँ आए हुए हमारे सभी अभिभावक, सभी राज्य, सभी आए हुए अतिथिगण और जिनके लिए आज ये बहुत शानदार कार्यक्रम जिसका यहाँ पर पिछले 60 वर्षों की एक बहुत गौरवान्वित करने वाली यात्रा, इसमें अनेक विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तित्व यहाँ से देने का काम इस घोड़ाखाल सैनिक स्कूल ने किया है। ऐसे हमारे इनके नैनीताल का कार्यक्रम ये हो रहा है, ऐसे सभी यहाँ के शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण और कैडेट्स एवं हमारे सभी विद्यार्थियों का मैं आज के इस अवसर पर बहुत अपनी ओर से स्वागत करता हूं। सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और विभिन्न स्थानों से आज यहाँ लोग पधारे। जैसा मुझे ग्रुप कैप्टन विजय जी ने बताया कि अनेक लोग आज देश के अनेक स्थानों से यहाँ आए हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से यहाँ स्वागत करता हूँ। साथ ही इस ऐतिहासिक सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का और सभी कैडेट्स का, उन सभी के मैं आज के इस अवसर पर गुरुजी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि सभी का उज्जवल भविष्य हो। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे ये विद्यार्थी जाएं और हमारे राज्य का भी, देश का भी, स्कूल का भी और साथ में अपने माता पिता, अपने सभी शिक्षक गणों का, उन सभी का नाम रोशन करें। और मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मैं सोच रहा था एक बार ब्रिगेडियर साहब की मुझे लगा कि स्टूडेंट शायद नहीं होंगे अंदर, स्टूडेंट बाहर होंगे, उनके अभिभावक, उनके गार्जियन यहाँ पर होंगे, लेकिन अब स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सभी प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपका स्कूल न सिर्फ हमारे राज्य बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक संस्थान है। और मैं सच कहूं तो आप सभी के बीच आकर मुझे भी आज बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये वो संस्था है जिसके बारे में मैं भी बहुत छोटे था, सबसे बचपन से ही मैं सुनता आया हूं, जिसने
कई दशकों से, जैसे 6 दशकों का अभी यहाँ पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाया गया, जिसने राष्ट्र को अनुशासन, परिश्रम और अदम्य राष्ट्रभक्ति से प्रेरित ओतप्रोत अनेक व्यक्तित्व देने का काम किया है, अनेक युवा देने का काम किया है। साथ ही ये स्कूल जितने भी उत्कृष्टता होती है, जिनको कहा जाता है सबसे अच्छा, उसकी परंपरा और उच्चतम मानकों के साथ सैन्य अधिकारियों को तैयार करने में भी अपना जो योगदान देता है वो अद्वितीय है। सच में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अभी हम देख रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, और मैं मिला तो 2 ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2 नहीं, फिर मुझे बताया ग्रुप कैप्टन साहब ने कि 2 और बैठे हैं कहीं पीछे। तो इस प्रकार से और बहुत सारे हमारे प्रशासनिक सेवाओं में, अन्य क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ से निकले हुए छात्र न केवल भारतीय सेना में बल्कि अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों का भी आज देश के अंदर वो बहुत बखूबी से उसका निर्वहन कर रहे हैं। और ये विशिष्ट विद्यालय सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं देता, बल्कि आपके हमारे नौनिहालों का, हमारे कर्णधारों का भविष्य का निर्माण भी करता है। और यहाँ हमारे सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सैन्य अधिकारी, और सबसे महत्वपूर्ण है जो मैं देख रहा हूं, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और एक अच्छा इंसान बनने की सीख एवं प्रेरणा देने का काम इस विद्यालय से जिस गति से किया जाता है, जिस भावना से किया जाता है, वो सच में अद्वितीय है। इस विद्यालय में पढ़ते हुए हमारे बच्चों में नेतृत्व, शौर्य और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो ही जाएगी। और इसका पता उनको भी तब लगेगा जब वो स्कूल से पास आउट हो जाएंगे, स्कूल से चले जाने के बाद। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात मुझे यहां से पास आउट होने वाले बड़े सैन्य अधिकारी बने बहुत से ऑफिसर्स ने भी बताया कि इस स्कूल का जो अनुशासन है, स्कूल की जो प्रेरणा है, स्कूल के शिक्षा और संस्कार है, सच में उसका एहसास जब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर काम करने का अवसर मिलता है, तो जो ट्रेनिंग यहाँ मिलती है, जो शिक्षा एजुकेशन मिलती है, वो जीवन में बहुत काम आती है। और घोड़ाखाल की जो मिट्टी है उसमें वो जज्बा है, वो आपको बाकी छात्रों से अलग खड़ा करता है। और यही जज्बा आगे चलकर भारतीय सेना में, नौसेना में, वायुसेना में और अन्य प्रशासनिक सेवाएं, आज जितने भी फील्ड हो सकते हैं, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, कोई बड़ा शोधार्थी बनेगा, अनेक क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में भी कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। मैं नहीं कह सकता कोई एक क्षेत्र कोई अच्छा खिलाड़ी बनेगा, वो सब देश की सेवा के लिए तैयार करने का काम ये विद्यालय करता है। प्यारे बच्चों, मुझे यह अवगत कराया गया है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने राष्ट्रीय अकादमी एनडीए में भी सर्वाधिक प्रविष्टियां देने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। और इस उपलब्धि को हासिल करना और रक्षा मंत्री ट्रॉफी को 10वीं बार जीतना, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट्स, शिक्षकों और संस्थान के नेतृत्व की लगन और उनके अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। मैं आप सभी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए, पूरे विद्यालय परिवार को मैं बहुत बधाई देता हूं, अपने छात्रों को, छात्राओं को, सबको बहुत बधाई देता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा उत्तराखंड भी देवभूमि होने के साथ साथ वीरभूमि भी है, क्योंकि उत्तराखंड की माटी से अनेक जन्मे वीरों ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। जब जब देश को वीरों की आवश्यकता पड़ी है, तो इस माटी के जन्मे सपूतों ने कभी पीछे कदम नहीं हटाए, हमेशा देश की आन बान शान के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से
कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के वीर जवान देश की रक्षा में तैनात हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं, और एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं सैनिक परिवारों में बच्चों को मिलने वाली राष्ट्र सेवा और अनुशासन, उनके संस्कार, उनसे बहुत भली भांति परिचित हूं, और उनकी चुनौतियों से भी और परेशानियों से भी बहुत नजदीक से मैंने उन सबको देखा है। और आज मैं आप सभी कैडेट से कहूंगा, आपको जो यहां अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण जो भी आपने सीखा है, वही आपको जीवन की हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति देगा। और उस सभी अवसर पर जहां जहां आपको कोई कठिनाई महसूस होगी, यहाँ की जो शिक्षा आपको मिली है, जो संस्कार मिले हैं, वो उन चुनौतियों को पार करने में आपको बहुत सहायता देगा। क्योंकि इस विद्यालय की स्कूल ड्रेस एक साधारण कपड़ा नहीं है, बल्कि एक अनुशासन, एक सम्मान और एक वचन है। प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना और सैनिक स्कूलों को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने देश के सैनिक स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए आज सैनिक स्कूलों का विस्तार करने के साथ ही नए सैनिक स्कूलों की स्थापना भी की जा रही है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा रक्षा बजट में भी निरंतर वृद्धि की गई है। कई गुना आज रक्षा का बजट देश का बढ़ाया गया है, जिससे सेना को आधुनिकीकरण और उसकी क्षमताओं में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। हमारे सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा है, उनका सम्मान भी हुआ है, उनके कल्याण के लिए भी आज अनेकों काम हो रहे हैं। पहले बड़ी संख्या में हम विदेशों से रक्षा के उपकरण खरीदते थे। हम सबको याद होगा कि पहले के समय में छोटे छोटे रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी तो हम आयात पर निर्भर रहते थे, विदेशों से हमें छोटे छोटे उपकरण भी खरीदने पड़ते थे। लेकिन आज भारत विश्व के अनेक देशों को अत्याधुनिक रक्षा के उपकरण और हथियार दोनों ही निर्याताओं की सूची में, जो दुनिया के टॉप देश हैं, उन टॉप देश की, दुनिया के टॉप देशों की सूची में आज हमारे देश का नाम भी शामिल हो गया है। इसके साथ ही आदरणीय मोदी जी ने दशकों से लंबित वन रैंक और वन पेंशन योजना को लागू करके पूर्व सैनिकों के जहां सम्मान के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम को भी किया है। और ये ऐतिहासिक काम 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, 40 सालों से रुकी हुई ये मांग पूरी हुई। हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों के लिए और हमारे शहीदों एवं पूर्व सैनिकों का मान सम्मान और उनके परिवार का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। शहीदों को इस क्रम में हमने मिलने वाली अनुदान राशि को हमने 5 गुना यहां बढ़ाया है। शहीदों के एक आश्रित को नौकरी देने का काम भी आज राज्य के अंदर हमने ये भी प्रावधान किया है। पूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे सैनिकों एवं उनके परिवारों का उत्थान सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बलिदानियों की स्मृति में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसका सारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और राज्य के हमारे जितने शहीद हैं उनके पावन आंगन की माटी लाकर उस स्थल पर स्थापित की गई है, जिसका जल्दी ही हम लोकार्पण भी किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं सभी कैडेट्स और विद्यार्थियों से ये कहूंगा कि आप जीवन में जो भी संकल्प लें उस पर मन लगाकर कार्य करें। उसके आगे किंतु परंतु का कोई विकल्प न रखें, क्योंकि मैं एक बात हमेशा अपने बोलने के अंत में कहता हूं कि विकल्प रहित संकल्प। और ये विकल्प रहित संकल्प क्या है? ऐसा संकल्प
जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि संकल्प में यदि विकल्प आता है तो संकल्प टूट जाता है, हमारे रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं, मंजिल हमसे ओझल हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। और जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं आता है तो संकल्प सिद्ध होता है, वो काम, वो लक्ष्य, वो हमारा तय जो स्थान होता है, गंतव्य होता है, हम उस स्थान तक पहुंचते हैं। संकल्प से सिद्धि का सबसे बड़ा मंत्र है कि संकल्प में किसी का विकल्प ना आना, विकल्प रहित संकल्प का होना। अंत में मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन विजय सिंह जी व उनकी पूरी टीम को, विद्यालय के में शिक्षा के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए बहुत साधुवाद देता हूं, और इसके साथ साथ इनके कम्युनिकेशन के लिए भी, संवाद के लिए भी इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि हर एक अवसर पर, हालांकि मैं पिछले लंबे समय से 2 वर्ष से मैं भी सोच रहा था कि मैं किसी कार्यक्रम में आप जैसे सभी महानुभावों के बीच में, हमारे प्यारे विद्यार्थियों के बीच में आऊं, लेकिन अवसर नहीं हो पाया। सौभाग्य से आज मुझे भी आने का अवसर मिला है, लेकिन इनका संवाद निरंतर बना रहता है और विद्यालय के लिए जहां भी जो भी आवश्यकता होगी, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। साथ ही में सभी विद्यार्थियों एवं कैडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और जो उनके अभिभावक यहां आए हैं उन सभी का एक बार फिर से अपनी ओर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जो